Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Neha. In today's video, we are going to start with translation studies. See, every year competition for NTA UGC NET examination is increasing. Not only competition but also the level of the questions asked. In that context, it becomes very much necessary to talk about these topics that are short, conceptual, and that are still emerging. See, translation as a concept has always been there. We have looked at it from the way of colonization also, when a sacred texts like Srimad Bhagavad Gita, Ramayana and Mahabharata, they were translated. But translation studies basically means to study translation as a theory. It doesn't mean to study the translated works because there are so many. There is a translation of Beowulf. There is a translation of Shakespeare from old Shakespeare's writing, from old English writing to modern day writing. So translation had always been in trend, has always been the need of the hour. But who theorized it? The concept is this. Because of the level of the questions that are increasing, it becomes very much pertinent to talk about translation as a theory, not translation as an act of translating source language to the target language. See, translation studies as a concept has also been included in the syllabi of UPPSC GDC examination. And that's a wonderful move from their side because the syllabus is so vast that we have complete linguistics unit and we have complete translation studies unit that will naturally equip the students to the value of the translation studies. So this video is a bonus for both type of candidates. Candidates who are going to appear in upcoming NTA UGC NET examination. This is going to be a one short video. We'll start translation studies and we will end up in this very video only. And second, this video is useful for the candidates who are going to appear in UPPSC GDC Assistant Professor examination. So stay tuned with me because this video is going to be one short video where you will get to know each and everything about translation studies. See, translation means converting a language. It means the precedence has to be given to the language, whether it is any language of the world. Now, let us go back to the very fact that language as a concept was understood by linguistics. That language is the one that makes the literature. Literature is not something that makes the language, but rather language is something that makes the literature. So language is the way of life, for like culture. So language is the means of communication. Language cannot be defined, and it cannot be defined because it has a sense like life. It is through language that you express yourself. It starts with the moment you start cooing and babbling and enter the one word stage in language learning acquisition. So linguistics, they played a vital role in giving importance to the language. Linguistics like Ferdinand de Saussure, Noam Chomsky and Roman Jakobson. And once language was understood as a means, language was understood as a subject. In our NTA UGC NET examination, we have linguistics as a complete subject of examination. So, linguistics is the study of language. When the importance of language was understood, the need was felt. Language occupied the central place in the cultural exchange also. In order to know any culture or any country, you need to know the language first, because it is through the language that the exchange of the ideas and thoughts take place. So linguistics is basically the study of language that prompted the study of language, and it is a translation studies that took ahead that importance of a language.
Connecting it to the cultural context, I would like to say that because if we look at the example of colonization, what happened during colonization? Britishers came here, that they colonized us, and one way of their colonizing us had been through language. They understood our language, they understood our namaste, they understood us कहाँ जा रहा है, तो उन्होंने हमारे लैंग्वेज को समझा है, उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया है. आफ्टर दैट कॉलोनाइजेशन हमारा जो है कंप्लीट किया है, इंटेलेक्चुअली किया है, हमें समझा है, हमारे सेक्रेड टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर कर हमारी रिलीजनल आइडियोलॉजी को समझा है कि हम रिलीजन में क्या बिलीफ सिस्टम रखते हैं, और हमारे सुपरस्टिशियस बिलीफ्स जो थे उनको इरेडिकेट करने की भी कोशिश की है. तो कॉलोनाइजेशन में किसी को ऑप्रेस करने के लिए, किसी और नेशन को ऑप्रेस करने के लिए उसकी लैंग्वेज की समझ होना बहुत जरूरी है. तो ट्रांसलेशन की वैल्यू तो कॉलोनाइजेशन वर्ल्ड वॉर में समझ आ गई थी. जब इंडियन सोल्जर्स इटली के लिए लड़ रहे थे तो एक लैंग्वेज डेवलप की गई, टास्क बेस्ड लैंग्वेज, कि आपको जो जितनी लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए एप्रोप्रिएटली उतनी नॉलेज ही आपको मिलेगी. पिडियंस डेवलप हुए, क्रियोल्स डेवलप हुए, ये सब लैंग्वेज की एवोल्यूशंस है. ये सब लैंग्वेज क्रियोल, sorry, I write it this way, क्रियोल. पिडगिन्स डेवलप हुए, क्रियोल्स डेवलप हुए, लैंग्वेज में वेराइटीज आई, लेकिन ट्रांसलेशन के साथ साथ लैंग्वेज को फुल फ्लेज्ड आइडेंटिटी मिली है लिंग्विस्टिक्स को. और ट्रांसलेशन स्टडीज, आई वुड लाइक टू से दैट इट्स एन एक्सटेंशन, इट्स अ पार्ट ऑफ कल्चरल स्टडीज, बिकॉज while we translate the work in some other language, we are not only aiming at the global space, but we are aiming at the cultural space. We are this is a part of the cultural exchange that is being taken place, that is taking place. Cultural exchange, ग्लोबल स्पेस, ये सब कल्चरल आइडेंटिटी है. किसी को कॉलोनाइज करने के लिए उनका कल्चर समझना बहुत जरूरी है, और कल्चर को समझने के लिए लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है. सो ट्रांसलेशन थियरी और ट्रांसलेशन स्टडीज इज नॉट मेरली L1 और L2, ST और TT, ये नहीं है. ट्रांसलेशन के बहुत सीरियस अंडरटोन्स भी हैं. इससे हम कल्चरल एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट समझते हैं, ग्लोबल स्पेस का समझते हैं, ग्लोकल स्पेस का समझते हैं. महाश्वेता देवी को गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक ने ग्लोबल स्पेस प्रोवाइड किया है, राइटिंग्स ऑफ सब ऑल्टर में प्रोवाइड किया है, मदर ऑफ 1084 में प्रोवाइड किया है, 1084 की मां. तो ये जब ट्रांसलेशन की जाती है, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, दिस इज नॉट द ट्रांसलेशन. यू दिस वे ट्रांसलेशन इज इनकम्प्लीट. कौन कह रहा है मैं जा रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट है. क्यों कह रहा है कि मैं जा रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट है. कहां जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है, किस टाइम जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है. सो ट्रांसलेशन डजंट मीन दैट यू कैरी फॉरवर्ड द syntactical structure of one language to the syntactical structure of the other language. It has some serious undertones to it, the pragmatics of it, the context of it, the syntax of it, the meaning of it. So much there is in translation studies, and definitely if you have the prior understanding of linguistics, translation studies, I tell you, will be of much more, it will be much more understandable for you. So try to link one theory to the other. This way your understanding of one literary theory will be very, very easy. In this video, we will be talking about these 6 major concepts: source text and target text, foreignization and domestication, equivalence, scopus theory, kinds of translation, and major theories. All these things, they are in coherence with UPPSC GDC का syllabi, but translation as a theory को समझने के लिए these parameters are very, very important. What is source text? What is target text? What is the concept of foreignization? Who gave the concept of domestication? What is equivalence? So all these things, stay tuned, my dear students.
to this video. Do view this video up till end, because all these concepts will be completed in this very video only. So this is a one short video for students who are preparing for NTA UGC NET examination. very useful video. competition भाई बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है. एक बार ट्रांसलेशन का मीनिंग समझ लेते हैं. See, translation means in the formal tone, in the definition tone, it means to carry across the content of one language to the other language. This is to carry across. It is a means of communication. It's a means of cultural exchange. It's the way of transmission of meaning. So all these things are related to the concept based definition of translation studies. So when we study source text and target text, this is the first concept we are going to take up. Source text and target text. This means that source text is basically the main text. Translation doesn't only mean that you convert source text to a target text, but translation has some latent meaning to it, because in that case language matters, cultural context matters, ideology matters, and intention also matters. Like I told you, मैं जा रहा हूँ, language matter करती है. हिंदी में बोल रहा हूँ, cultural context matter करता है. सोच क्या है, आइडियोलॉजी क्या है, किसे कह रहा हूं, किस टोन में कह रहा हूं. मैं जा रहा हूं. आइडियोलॉजी क्या है ये कहने की, इंटेंशन क्या है. सो ट्रांसलेशन डजंट ओनली मीन टू कैरी अक्रॉस वन लैंग्वेज ऑफ द सोर्स टेक्स्ट टू द टारगेट टेक्स्ट, बट रादर इट हैज सीरियस अंडरटोन्स टू इट. तो सोर्स टेक्स्ट एंड ट्रांसलेटेड टेक्स्ट अब हम यहां से समझते हैं इस स्लाइड के थ्रू. सोर्स टेक्स्ट बेसिकली हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट होता है, जो फॉर एग्जाम्पल हिंदी की राइटिंग्स, या फिर हमें यहां पर ऐड कर देती हूं बंगाली राइटिंग्स ऑफ गुरु रविंद्रनाथ टैगोर. He used to write in Bengali language. So this becomes Gitanjali. His work becomes the original work in Bengali language. When that Bengali work is being translated into English language, the source text is this original Bengali language text. फैज अहमद फैज की जो उर्दू पोएट्री है, फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका, सो जो उर्दू लैंग्वेज में लिखी गई है वो हमारा सोर्स टेक्स्ट है. वेयर एज जो इंग्लिश लैंग्वेज में हम फैज अहमद फैज की पोएट्री को पढ़ते हैं वो हमारा टारगेट टेक्स्ट है, टारगेट लैंग्वेज है. दिस इज द ट्रांसलेटेड वर्जन. व्हेन यू ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश, जब आप प्रेमचंद की कहानियों को इंग्लिश में पढ़ते हैं, गोदान, जब आप इंग्लिश में पढ़ते हैं हिंदी में लिखी हुई राइटिंग्स को, तो ये ट्रांसलेटेड टेक्स्ट हमारा टीटी होता है, टारगेट टेक्स्ट. व्हेन यू ट्रांसलेट वन वर्ड ऑफ हिंदी टू इंग्लिश, बंगाली टू इंग्लिश, और इवन इंग्लिश टू फ्रेंच, translation studies, because we are Indians, primarily North Indians, that is why I am taking up these examples. So यहाँ पर किसी भी लैंग्वेज में जब ST सोर्स टेक्स्ट से ट्रांसलेटेड टेक्स्ट या टारगेट टेक्स्ट पे कन्वर्ट होता है तो वो ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट, सिंस दिस इज अ वन शॉट मैराथन टाइप वीडियो, तो बहुत जरूरी है कि हम सारे कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट करते चले. आज क्या डेट है? टुडे इज 20th ऑफ मे. हमारा एग्जाम टेंटेटिवली मानकर चलते हैं 26 जून टू 30 जून के बीच में होने वाला है. तो आप लगा कर चलिए, आपके पास 1 मंथ का ही टाइम रह गया है. तो ये वीडियो बहुत यूजफुल होगी आपके लिए.
फटाफट से समझने में कि ट्रांसलेशन स्टडीज क्या होती है। हाँ, श्योर, आई एम वेरी श्योर दैट दिस वीडियो विल बी मोर देन 15 मिनट्स। स्टे ट्यून विद मी, एक बार में सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। नाउ वी हैव कॉन्सेप्ट्स बाय लॉरेंस वेन्यूटी। मैं इसे क्लीन कर देती हूं। लॉरेंस वेन्यूटी के कॉन्सेप्ट्स है ये हमारे फॉरेनाइजेशन एंड डोमेस्टिकेशन। दीज आर द टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रांसलेशन। इन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फॉरेनाइजेशन वी टेंड टू प्रिजर्व द फॉरेन एलिमेंट। जब हमने नमस्ते को हेलो में कन्वर्ट नहीं करा, उसे हमने नमस्ते ही रखा। लेकिन जिस रीडर को हम टारगेट कर रहे हैं, इंग्लिश रीडर को हम टारगेट कर रहे हैं, वो भी नमस्ते पढ़ेगा, तो उसके लिए वो फॉरेन हो जाएगा, फॉरेन वर्ड होगा। बट वो हमने ओरिजिनल टेक्स्ट, सोर्स टेक्स्ट से रिटेन किया है। सो फॉरेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट एम करता है प्रिजर्विंग द फॉरेन एलिमेंट्स। ये साथ साथ लिख लीजिएगा, बोथ द कॉन्सेप्ट हैव बीन गिवन बाय लॉरेंस वेन्यूटी। क्वेश्चन एमसीक्यू, पीवाईक्यू, एमसीक्यूज में आ सकता है। When you retain namaste as namaste and do not convert namaste into hello, that is the foreignization. As Chimamanda Ngozi Adichie writes, she tries to retain, I'm not talking about translation here. She retains some Igbo phrases, Igbo words in her novels also, in the novels of Bifront War also. Same way Toni Morrison, same way Chinua Achebe, same way Ngugi wa Thiong'o. So वो क्या करते हैं, अपने ट्राइब के वर्ड्स को रिटेन करते हैं, लेकिन जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो हमारे लिए वो फॉरेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट हो जाता है। बट हेयर फॉरेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमें ट्रांसलेशन में पढ़ना है। सो जब ट्रांसलेटर रिटेन कर देता है ओरिजिनल वर्ड्स को, जो कि फॉरेन ऑथर्स, फॉरेन रीडर्स के पास जाते हैं, तो नमस्ते उनके लिए एक फॉरेन वर्ड रहता है। वेयर एज द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन इज एंटायरली ऑपोजिट टू इट। व्हेन यू बिलीव इन द वेरी फैक्ट दैट देयर शुड बी 100% अडैप्टेशन, 100% ट्रांसलेशन, 100% सिंप्लीफिकेशन, नमस्ते हेलो की तरह ही लिखा जाएगा। नो वर्ड विल बी रिटेन्ड फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्स्ट। मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग बन जाएगा। अब यहां पर आप कुछ भी हिंदी फ्रेज का रिटेन नहीं करेंगे। द नैरेटर ऑफ द स्टोरी सेड इन इनवर्टेड कॉमास, मैं जा रहा हूं, ये हो गया फॉरेनाइजेशन इन अ ट्रांसलेटेड टेक्स्ट। द नैरेटर ऑफ द स्टोरी सेड आई एम गोइंग, ये हो गया डोमेस्टिकेशन। व्हेन यू आर कमिटिंग 100% ट्रांसलेशन। अगला कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं इक्विवेलेंस थ्योरी का। यूपीपीएससी जीडीसी के मेरे स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़ लो, वन शॉट वीडियो है, बहुत यूजफुल होने वाली है। और साथ साथ चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट्स भी रख सकते हैं। आई विल वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, आप शॉट रख लीजिए। अब हम करते हैं इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट। सी कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंस थ्योरी क्या होती है? इक्विवेलेंस थ्योरी होती है दिस थ्योरी। दिस इज द सोर्स टेक्स्ट, दिस इज द ट्रांसलेटेड और द टारगेट टेक्स्ट। अगर हम इन दोनों का बैलेंस बना करके देखते हैं, तो जब ये इक्वल प्लेन पर होते हैं, दैट मीन्स ट्रांसलेशन 100% करेक्ट की गई है। सेम इमोशन, सेम पैशन, सेम इंटेंशन, सेम आइडियोलॉजी, सब कुछ ट्रांसफर किया गया है। स्ट्रक्चर मेंटेन्ड है, ग्रामर मेंटेन्ड है, लिटरल मीनिंग मेंटेन्ड है, एंड देयर इज दिस इक्विवेलेंस बिटवीन द सोर्स टेक्स्ट एंड द टारगेट टेक्स्ट। तो हमारी इक्विवेलेंस थ्योरी कामयाब हो जाती है, और ये थ्योरी हमारी यूजीन निडा ने दी है। यूजीन निडा ने ये थ्योरी हमारी दी है। वो थ्योरी हमारी लॉरेंस वेन्यूटी ने दी थी, ये थ्योरी हमारी यूजीन निडा ने दी है। दैट यू आर एबल टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम।
सिमिलैरिटी इंडेक्स कितना है सोर्स टेक्स्ट एंड टारगेट टेक्स्ट का। नेक्स्ट हमारी है भाई स्कोपोस थ्योरी। स्कोपोस थ्योरी हैज बीन गिवन बाय जर्मन लिंग्विस्ट एंड इट्स अ एनटीए यूजीसी नेट का पीवाईक्यू एमसीक्यू आ सकता है, ध्यान से पढ़ लीजिए। स्कोपस थ्योरी हैज बीन गिवन बाय जर्मन लिंग्विस्ट हंस वर्मीर ने ये दी है, आप इसे हाईलाइट कर लीजिएगा। ऑन आवर यूट्यूब चैनल वी हैव टेकन दिस चैलेंज, हमने कंप्लीट फोनेटिक स्टार्ट कर रखी है। आज हम ट्रांसलेशन थ्योरी अपनी कंप्लीट कर लेंगे और डे आफ्टर टुमारो हम अपना फोनेटिक्स कंप्लीट कर लेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आई एम आस्किंग फ्रॉम यू पीपल, जस्ट लाइक शेयर और कुछ अच्छा सा कमेंट टू एनकरेज मी, टू मोटिवेट मी, टू कीप ऑन गाइडिंग यू पीपल लाइक दैट। यूपीपीएससी जीडीसी के लिए एक्सक्लूसिवली और एनटीए यूजीसी नेट के लिए हमने कंप्लीट लिंग्विस्टिक्स अपने यूट्यूब चैनल पर बार बार कराया है। वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज हमारी बहुत ही हिट वीडियो है। लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स का जो कंप्लीट कोर्स है वो हमारे लाइव सेक्शन में भी जाकर के आप देख सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, what all I am asking for you is your like, your comment and please share this channel 2026. Let us grow together. So Scopus theory primarily means, मेरे dear students, कि जो ट्रांसलेशन होती है वो पर्पस बेस्ड होती है, एम बेस्ड होती है, इंटेंट बेस्ड होती है। विदाउट पर्पस, विदाउट एम, विदाउट इंटेंट ट्रांसलेशन नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पर्पस, एम और इंटेंट का भी ध्यान रखना है ट्रांसलेशन करते वक्त। पर्पस ड्रिवन होती है। मेडिकल मैनुअल आप ट्रांसलेट कर रहे हो, जब तक आपको खुद की नॉलेज नहीं है मेडिकल फील्ड की, आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो। तो पहले तो आपका एम ही यही होना चाहिए कि आप मेडिकल अंडरस्टैंडिंग रखें। उसके बाद जब आप ट्रांसलेट करें, एक मैनुअल है, तो जो जिन लोगों के पास वो ट्रांसलेटेड वर्जन जाए, उनका वे ऑफ इंटेलेक्ट भी इतना हो कि वो मेडिकल मैनुअल को समझ सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर पोएट्री है तो आपका मेन एम क्लियर है कि आपको एस्थेटिक्स को प्रिजर्व करके रखना है, आप उसके एस्थेटिक्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। गीतांजलि अगर आप बंगाली लैंग्वेज में पढ़े या गीतांजलि अगर आप पढ़े अपनी इसमें इंग्लिश वर्जन में पढ़ते हैं, तो भी उसमें सेम एस्थेटिक्स को मेंटेन करने की कोशिश की गई है। सेम विद महाश्वेता देवी। महाश्वेता देवी का जो वर्क्स है मदर ऑफ 1084, जिसको हम 1084 माँ कहते हैं, जो मूवी अडेप्टेशन भी है जिसमें जया जी ने काम किया है। और उसके बाद हमारा जो ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक, और इस तरीके गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक पर्टिकुलरली तो नहीं, सामिक बंदोपाध्याय ने ट्रांसलेट किया है। आई गॉट द नेम, सामिक बंदोपाध्याय ने ट्रांसलेट किया है, बट ही हैज बीन एबल टू रिटेन ऑल दोज डिटेल्स कि कैसे लास्ट में उस मदर की डेथ हो जाती है। 1084 क्या नंबर है, उसके बेटे का नंबर है। सो पोएट्री में एस्थेटिक्स को मेंटेन रखना, पर्पस होना चाहिए, एम होनी चाहिए, इंटेंट होनी चाहिए। ये जो हमारी स्कोपस थ्योरी है ये रीडर सेंटर्ड रहती है। रीडर सेंटर से क्या मीनिंग है, रीडर्स पे ज्यादा फोकस करती है कि क्या रीडर्स तक ठीक ट्रांसलेशन पहुंच रही है। ये याद रख लीजिएगा। दिस हैज बीन गिवन बाय हंस वर्मीर। सो ट्रांसलेशन एक कल्चरल एक्सचेंज होती है, ग्लोबल स्पेस पे एंटर करने का तरीका होती है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन। वी हैव द इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन, इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन एंड इंटरसेमियोटिक ट्रांसलेशन। See, intralingual translation is when the translation is taking place in the same language। भाई ओल्ड इंग्लिश, स्पेंसर की पोएट्री पढ़ के दिखाओ, ओल्ड इंग्लिश या मिडिल इंग्लिश में आप शेक्सपियर के वर्क्स को पढ़ के दिखाओ। जब तक हम शेक्सपियर का एक्ट 2
ब्रूट को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर लेते, हम समझ नहीं पाते। सो इंट्रालिंगुअल, इंट्रा कम्युनिकेशन क्या होती है? जब हम खुद से बात करते हैं, जब इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है, हिंदी टू हिंदी ट्रांसलेशन होता है, मॉडर्न लैंग्वेज के थ्रू होता है, क्या मॉडर्न अडेप्टेशन लेकर के आ रहे हैं। गोदान का क्लासिक टेक्स्ट है, अगर आप प्रेमचंद के वर्क गोदान का मॉडर्न क्लासिक इंग्लिश वर्जन पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश वर्जन तो पहले भी आया है, हिंदी वर्जन भी आते रहा है। तो जो रेप्लिकास और एडिशंस आते जाते हैं तो वो इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन होती है, जिसमें मॉडर्न डे लैंग, मॉडर्न डे पैरोल को ध्यान में रखते हुए कन्वर्ट किया जाता है। जब शेक्सपियर की राइटिंग्स को हम ओल्ड इंग्लिश से मॉडर्न इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वो इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन होती है, क्योंकि सेम लैंग्वेज में होती है। इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन क्या हो गई भाई? हिंदी टू इंग्लिश, वन टू अदर के थ्रू चलती है। इंटरसेमियोटिक क्या होती है? व्हेन यू कन्वर्ट वर्बल साइंस टू नॉन वर्बल साइंस। फॉर एग्जाम्पल, वर्बल साइंस का मीनिंग क्या है? वर्बल साइंस होते हैं हमारे रिटन या ओरल। जब आप इनको साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, ये यूजुअली हमारे टेक्सचुअल होते हैं। जब आप इसको फिल्म में कन्वर्ट करते हैं तो आप इसमें सॉन्ग भी ऐड करते हैं, आप इसमें नॉन वर्बल फीचर्स भी ऐड करते हैं इन ऑर्डर टू गिव दैट सेम एस्थेटिक्स। एक ड्रामा का लिखा होना और एक ड्रामा का परफॉर्म किया जाना, इंटरसेमियोटिक। एक नॉवेल का लिखा जाना, उसे फिल्म में कन्वर्ट किया जाना, इंटरसेमियोटिक। आई होप यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम एबल टू कम्युनिकेट। नहीं समझ में आ रहा है? ट्रांसलेशन ऑन कर लो, किसी भी लैंग्वेज में पढ़ लो। सो now let us talk about, there are other types of translation types also, जैसे कि literal translation, free translation, transliteration, technical translation, machine translation, जैसे Google Translation हमारा वर्क करता है। अब मेजर थियरिस्ट कौन से हैं ट्रांसलेशन थियरी के? रोमन जैकबसन, यूजीन निडा, लॉरेंस वेन्यूटी, हेंस जे वर्मी, जिन्होंने स्कोपस थ्योरी दी है। सो ऑन दैट नोट वी कम टू द एंड ऑफ द ट्रांसलेशन स्टडीज। आई होप यू पीपल हैव एंजॉयड, लर्नड अ लॉट। आई रियली डिजर्व दैट कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लास्ट तक देखें, क्योंकि दिस वीडियो विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। नो मैटर व्हाट, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। स्कोपस थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं आप लोगों को बता देती हूँ। स्कोपस थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू मेक इट एज इजी एज पॉसिबल। सो डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, इट्स माई रिक्वेस्ट। इट encourages me to stand up and teach more and more. So thank you so much for being up till last. Yes, we are providing notes for UPPSC GDC examination. Linguistics के notes available हैं हमारे पास, complete linguistics के हैं, आप वो हमसे ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। बहुत authentic original notes हैं, हमने और भी PSCs के लिए इन्हें क्यूरेट किया था और अब हम UPPSC GDC के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। अदर देन दैट 1 वीक में आप हमारे जो कोर्सेज हैं वो लिटरली चल रहे हैं, वो है हमारा लिटरेरी थियरी डी कोड्स। ये हमारा फर्स्ट कोर्स चल रहा है, लिटरेरी थियरी डी कोड्स बाय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। इसका प्लेटफॉर्म जो है ऑनलाइन है। 1 वीक का ये क्रैश कोर्स है, इसमें कंप्लीट लिटरेरी थियरी अलॉन्ग विद PYQ प्रैक्टिस कराया जाएगा। सेकेंड हमारा कोर्स जो चल रहा है, जिसमें हम कंप्लीट NTA UGC नेट के लिए लिंग्विस्टिक्स, कल्चरल स्टडीज, इंग्लिश इन इंडिया कंप्लीट करा रहे हैं इन द ड्यूरेशन ऑफ 1 वीक। प्लेटफॉर्म इसका भी ऑनलाइन है, 1 वीक एक्सटेंसिव है, इसमें मटेरियल के साथ साथ आपको PYQs भी कराए जाएंगे। और थर्ड जो हमारा कोर्स है दैट इज फॉर आवर रिसर्च स्कॉलर्स। हम कंप्लीट मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन का 9th एडिशन अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर करा रहे हैं। तो आप
इसे भी कर सकते हैं। 9th एडिशन रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, रिसर्च पेपर्स के लिए और थीसिस के लिए बहुत ही फ्रेंडली कोर्स है। 1 वीक का ये कोर्स है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कराया जाएगा। मैं खुद आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कराऊंगी एमएलए की, ताकि आने वाले अपकमिंग 2 to 3 इयर्स के लिए आपको थीसिस राइटिंग में प्रॉब्लम ना हो। आप रिसर्च प्रपोजल गाइडेंस के लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थीसिस की प्रूफ रीडिंग के लिए, व्हाट डिड आई से, प्रूफ रीडिंग के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम ऑलरेडी स्टेट यूनिवर्सिटीज की थीसिस को प्रूफ रीड कर रहे हैं एंड प्रूफ रीडिंग इज नॉट इलीगल। प्रूफ रीडिंग इज जस्ट यूटिलाइजिंग योर कैपेबिलिटीज ऑफ नोइंग द कंटेंट कनेक्शन, नोइंग द एमएलए 9th एडिशन। उसके अकॉर्डिंगली हम थीसिस को प्रूफ रीड करते हैं और उसके बाद अगर आप फ्लैग चेक कराते हैं तो आप एक अच्छा डाउनफॉल देख पाएंगे फ्लैग में। सो कंटेंट कनेक्शन, क्योंकि एग्जॉस्टिव वर्क है पीएचडी लिखना, सारे हमारे कोर्सेज ऑनलाइन चलते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर क्वेरी कर सकते हैं किसी भी कोर्स के लिए। 9996919196। This is Dr. Neha wishing you all the very best as you prepare.